ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر بھاری جرمانوں میں کمی کرنے کی تیاری وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ڈی آئی جی ٹریفک کی بھجوائی سمری منظور کر لی۔ پنجاب اسمبلی میں منظوری کے بعد ترمیم شدہ جرمانوں کا اطلاق ہو جائے گا۔ مدثر حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ گائی میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، ٹریفک جرمانوں سے متعلق عوام کے لیے اچھی خبر۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر بھاری جرمانوں میں کمی کرنے کی تیاری وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب وقاص نذیر کی بھجوائی سمری منظور کر لی۔ جرمانوں میں کمی کی سمری پنجاب اسمبلی اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی سے سمری کی منظوری کے بعد جرمانوں میں کمی کا اطلاق شروع ہو جائے گا۔ سمری کے مطابق موٹر سائیکل کا چالان 2000 سے کم کر کے 1000 روپے کر دیا گیا۔ رکشے کا چالان 3000 سے کم کر کے 1000 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ ٹریفک قوانین کی سنگین خلاف ورزی پر 2000 روپے جرمانہ ہوگا۔ کار اور جیپ کا چالان 5000 روپے سے کم کر کے 3000 روپے کر دیا گیا۔ ٹریفک قوانین کی سنگین خلاف ورزی پر 5000 روپے جرمانہ برقرار رہے گا۔ موٹر سائیکل، رکشہ اور کار پر اوور سپیڈنگ کے جرمانوں کو برقرار رکھا گیا ہے۔ مطابق 2000 سی سی اور دیگر لگژری وہیکلز کا جرمانہ 20000 روپے سے کم کر کے 10,000 روپے کر دیا گیا۔ 2000 سی سی وہیکلز کا کم سے کم جرمانہ 2000 اور زیادہ سے زیادہ 10,000 روپے ہوگا۔ منی ٹرک، کوسٹر، چھوٹی مسافر وین اور لائٹ وہیکلز کا جرمانہ 20,000 سے کم کر کے 7,000 روپے کر دیا گیا۔ ٹرک، بس اور دیگر ہیوی وہیکلز کا جرمانہ 20,000 سے کم کر کے 10,000 روپے کیا گیا ہے۔ لائٹ اور ہیوی وہیکلز کی دیگر خلاف ورزیوں پر بھی جرمانوں میں 10,000 روپے تک کمی کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے گاؤں والے بھی اسی معیار زندگی کے حقدار ہیں جو شہریوں میں میسر ہے۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی بحالی اور مرمت میں کوتاہی برداشت نہیں۔ پینے کا صاف پانی پنجاب کے ہر شہری کا حق ہے۔ مثالی گاؤں پنجاب کے مزید 7,500 دیہات کی کایا پلٹے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ مثالی گاؤں اور صاف پانی پروجیکٹ پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مثالی گاؤں دوسرے فیز کی اصولی منظوری دے دی۔ دیہات میں پانی کی محرومی ختم ہوگی، تالابوں کے آلودہ پانی سے نجات اور زندگی آسان اور خوبصورت ہوگی۔ ہر گاؤں میں واٹر سپلائی، سولر سسٹم، ٹیوب ویل، گندے پانی کے تالابوں کی صفائی اور ڈرین کور کی جائے گی۔ 485 دیہات کو مثالی گاؤں میں بدلنے کا مشن پہلے اور بعد کی تقابلی ویڈیوز مریم نواز کو پیش ہوں گی۔ مثالی گاؤں پروجیکٹ کے فیز 1 کی تکمیل پر 59 ارب روپے سے زیادہ لاگت آئے گی۔ مریم نواز نے کہا پینے کا صاف پانی ہر شہری کا حق ہے۔ دیہات کو مثالی گاؤں میں بدلنے کا عزم ہر صورت پورا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مثالی گاؤں اور صاف پانی منصوبوں کو نئی رفتار دینے کا فیصلہ، تکمیل کی ٹائم لائن طلب کر لی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے کسانوں کے لیے پیکج کا اعلان۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمی بخاری کا کہنا ہے کہ مفت باردانہ اسکیم سے کسانوں کو ریلیف ملے گا، جبکہ صوبائی وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی کہتے ہیں کہ کاشتکاروں سے گندم 3500 روپے فی من کے حساب سے خریدی جا سکے گی۔ دوسری طرف کسان تنظیموں نے حکومتی پیکج کو مسترد کرتے ہوئے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ صوبائی وزراء عظمی بخاری اور عاشق حسین کرمانی کی پریس کانفرنس۔ پنجاب کے کسانوں کے لیے پیکج کا اعلان۔ عظمی بخاری کہتی ہیں کہ مفت باردانہ اسکیم سے کسانوں کو براہ راست ریلیف ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں صوبے میں گڈ گورننس کے باعث نمایاں تبدیلی آئی۔ اپریل کے آخر تک صوبے میں 100 نئی گرین بسیں چلائی جائیں گی۔ اپریل کے اینڈ تک 100 نئی گرین بسز جو ہیں وہ بھی شامل ہونے جا رہی ہیں اس فلیٹ کے اندر، اور مئی کے اینڈ پر جو ہے مزید 400 بسیں جو ہیں وہ ایڈ ہوں گی۔ تو اسی مالی سال کے اندر کوئی بھی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں رہے گا پنجاب کے اندر جس کے اندر یہ گرین ٹرانسپورٹ جو ہے وہ لوگوں کو پرووائڈ نہ کی جائے۔ صوبائی وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی کا کہنا ہے کہ اس سال گندم کی پیداوار 22.5 ملین ٹن تک پہنچنے کی توقع ہے۔ کسانوں کو پہلی مرتبہ 6 ارب روپے مالیت کا باردانہ مفت فراہم کیا جا رہا ہے۔ کسان اپنے قریبی مراکز سے رجسٹریشن کے بعد فی ایکڑ 25 من تک باردانہ حاصل کر سکیں گے۔ کاشتکاروں سے گندم 3500 روپے فی من کے حساب سے خریدی جائے گی۔ 22.5 ملین ٹنز آف پروڈکشن ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں، جس کے اندر سے پنجاب کی غذائی ضروریت کے لیے صرف 15 ملین ٹن ضروری ہیں۔ 2.5 ملین ٹن پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو پرکیور کرنے کا چیف منسٹر پنجاب نے اس ٹارگٹ کو بڑھا کر 3 ملین ٹن کر دیا، مطلب کہ 30 لاکھ ٹن پنجاب کے اندر کی فصل سے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اٹھائے گا ایٹ دا ریٹ آف 3500 روپیہ۔ ان کو پہلی مرتبہ
हाईएस्ट क्वालिटी का, बेहतरीन क्वालिटी का 6 अरब रुपए का बारदाना जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर्स को मुहैया किया जाएगा। दूसरी तरफ किसानों की नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी ने हुकूमती पैकेज को मुस्तरद कर दिया। कैमरामैन बाबर के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है तमाम महकमों में इस्लाहात का अमल जारी है, तरक्याती प्रोजेक्ट्स बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा लड़कियों और लड़कों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट AI स्कूल्स का क़याम जल्द अमल में लाया जाएगा। तालीम और रोज़गार हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। रिपोर्ट देखिए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ महकमों के मनसूबों का जायज़ा इजलास हुआ। महकमा तालीम, हायर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और महकमा सनत तजारत की स्कीमों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर तालीम, वज़ीर सनत तजारत और मुतल्लिका ऑफिसर्स ने इजलास को ब्रीफिंग दी। वर्ल्ड बैंक के ताउन से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गेट्स प्रोजेक्ट और आफ्टरनून स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम का जायज़ा लिया गया। लाहौर में एबिट रोड पर स्पेशल स्काउट्स के लिए 51 मिलियन की लागत से हॉस्टल की तामीर का जायज़ा लिया गया। शादा टाउन में ऑडिटोरियम की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई। सीनियर सूबाई वज़ीर ने हायर एजुकेशन को CMIT लैब्स का टास्क बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। कसूर में नवाज शरीफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, नारोवाल में इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी पार्क, गुजरात में इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में ट्रांसजेंडर के स्किल्ड प्रोग्राम, CM यूथ एम्प्लॉयबिलिटी, CM एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम और दीनी मदारस में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के क़याम का जायजा लिया गया। हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट आइन से मुतसादिम है, जिससे हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हुकूमत इस निज़ाम के ज़रिए पैसों की मंडियाँ लगाना चाहती है। जमाती बुनियादों पर UC चेयरमैन के इंतखाब का हक अवाम को होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा कि हुकूमत ऐसा बल्दियाती कानून लेकर आई है जिसमें इख्तियारात अवाम तक मुंतकिल नहीं होते। बल्दियाती एक्ट के मुताबिक अवाम बराह रास्त अपना UC चेयरमैन मुंतखब नहीं कर सकते, जो गैर जमहूरी इक़दाम है। हुकूमत इस निज़ाम के जरिए पैसों की मंडियाँ लगाना चाहती है। जमाती बुनियाद पर UC चेयरमैन के इंतखाब का हक अवाम को होना चाहिए। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि अदालत ने भी इस मुकदमे में जल्द फैसला करने की जरूरत पर जोर दिया है। मुस्लिम नून जैसी जमातें खानदानी बुनियादों पर चलती हैं, जहां घर का कोई भी फर्द जमात का मालिक बन जाता है और आम कारकुनों को आगे आने का मौका नहीं दिया जाता। UC जो बहुत छोटा सा यूनिट होता है, अवाम को ये हक जो है हुक्मरानी नहीं दिया जा रहा। अवाम के इस हक के ऊपर डाका मारा जा रहा है कि वो अपना UC का चेयरमैन भी बराह रास्त मुंतखब नहीं कर सकते। ये बदतरीन आमरीत की मिसाल है जो पंजाब हुकूमत ने कायम की है इस एक्ट में। ये आमरीत है कि आप एक UC का चेयरमैन भी बराह रास्त अवाम से मुंतखब नहीं चाहते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने हुकूमत की जानिब से जारी बिजली की लोड शेडिंग को गैर मुनसिफाना करार देते हुए मुतालबा किया कि मार्केटें जल्द बंद करने के मामले पर ताजरों को एतमाद में लिया जाए। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम के साथ कारोबारी तबके को भी मुश्किलात में डाल दिया। हर घंटे बाद 1 घंटा बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है। शहरियों का कहना है बिजली मुयस्सर है, ना ही गैस। बिल्स का सिलसिला जारी है। कमी बिजली सार्फिन पर भारी पड़ने लगी। बिजली की कम पैदावार से लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। लेस्को रीजन में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा। जराये के मुताबिक गैस से चलने वाले मुतअद्दिद पावर प्लांट से पैदावार में कमी हुई। पावर डिवीजन का 2 घंटे 15 मिनट लोड शेडिंग का दावा भी गलत साबित हुआ। शहर के बेशतर इलाकों में हर घंटे के बाद 1 घंटा बिजली बंद रखी जा रही है। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया 8 घंटे से तजावज कर गया। दिन में लेस्को की तलब 1900 से 2000 मेगावाट तक होती है। शाम को सोलर बंद होते ही लोड शेडिंग का फरियत निकल आता है। रात के औकात में लेस्को की तलब 2900 मेगावाट तक पहुंच जाती है। रात के वक्त लेस्को को 1000 मेगावाट शॉर्टफॉल में कम वोल्टेज की शिकायत भी सामने आ रही है। शहरियों का कहना है कि बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी है। सुबह गैस न होने से बगैर नाश्ता किए काम पर आते हैं। दूसरी जाने बिजली न होने से कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहा है। बिजली के ऊपर कारोबार होते हैं। 8 बजे के इन्होंने मार्केटों का वैसे टाइम कर दिया हुआ है। 7 बजे इधर वैसे लाइट बंद कर देते हैं। वो घर 9 बजे पहुँचे, 9 बजे घर की लाइट चली गई। तो बेसुकूनी पाकिस्तान में छाई पड़ी है। बिजली की बहुत टेंशन है हमें। उसके बाद जो है गैस की भी टेंशन है। वो गैस की बात आपको किसी ने बताई नहीं होगी। वो गैस भी तकरीबन सुबह पहले 9 बजे आती है, अब तो आती ही नहीं है। सुबह 8 बजे आती है, 9 बजे चली जाती है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी लोड शेडिंग के मसले पर काबू पाया जाए और बिजली और गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। गैस बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत में होशरुबा इजाफा। शहरियों का जीना मुहाल। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का शॉर्टफॉल 1000 MMCFD से तजावुज़ कर गया।
मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के बाइस LNG की सप्लाई में जंगी सूरत हाल, मुल्क में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लाहौर भी शदीद मुतासिर, शहरियों को खाना बनाने में दुश्वारी का सामना। ज़राए के मुताबिक LNG की फराहमी रुकने के बाद शॉर्टफॉल में मजीद इजाफा हो गया। मुकामी कुदरती गैस की फराहमी भी शिवा गैस फील्ड की बंदिश से मुतासिर। शिवा गैस फील्ड से 70 MMCFD गैस सिस्टम में शामिल होती है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का शॉर्टफॉल 1000 MMCFD से तजावुज कर गया। शॉर्टफॉल बढ़ने से गैस बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत में मुसलसल इजाफा। गुंजानाबाद और टेल के इलाकों में लो प्रेशर का मसला संकीन हो गया। शेखुपुरा, ननकाना, सरगोदा, उकाड़ा और कसूर समेत दीगर शहरों में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। खैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार ने अदालत से लोड शेडिंग के खात्मे के अहकाम जारी करने की इस्तदा कर दी। लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से दायर की गई। वकील अजहर सिद्दीक का मौक़िफ़ है कि महंगी बिजली के बावजूद शहरियों को लोड शेडिंग का सामना है। लोड शेडिंग की वजह से शहरियों के कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। अदालत से इस्तदा है कि शहरियों को बिला इम्तियाज़ बिजली की फराहमी का हुक्म दिया जाए और मुल्क भर में लोड शेडिंग के खात्मे के अहकाम जारी किए जाएँ। लाहौर में प्राइस कंट्रोल मुहिम जारी है। ज़िला इंतज़ामिया ने 5857 इंस्पेक्शंस के दौरान 89 खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी। 3,55,500 रुपये जुर्माना आयद किया गया। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने 24 घंटों के दौरान प्राइस कंट्रोल सरगर्मियों के तहत शहर में 5857 इंस्पेक्शंस की। कार्रवाई के दौरान 89 खिलाफ वर्जियाँ पाई गईं, जिन पर मजमूई तौर पर 3,55,000 रुपये से ज़ायद जुर्माना किया गया। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब 9 अफराद को गिरफ्तार करके FIR दर्ज की गई। ये इक़दामात अवामी रिलीफ और अशिया ज़रूरिया की मुकर्ररा निर्खों पर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए किए गए हैं। पंजाब में रियल इस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए बड़ा एक कदम। सरकारी और निजी शोबे की मुश्तरका मुशावरत, यकसा निज़ाम मुतारिफ कराने की तैयारी। रियल इस्टेट में फ्रॉड के खात्मे और सरमायाकारी के फ़रोग़ का नया रोड मैप सामने आ गया। पंजाब में रियल एस्टेट सेक्टर को मुनज़्ज़म और शफाफ बनाने का अज़म। नया कानूनी और डिजिटल फ्रेमवर्क, शफाफियत और एतमाद की बहाली का दावा। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क़याम की जानिब अहम पेशरफ्त। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और LDA के इश्तराक से मुशावरती नशिस्त। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद ने बताया कि वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की हिदायत पर हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े पैमाने पर इस्लाहात लाई जा रही हैं। निजी शोबे की शमूलियत से एक यूनिफॉर्म रेगुलेटरी सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है। सूबा भर में प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स को सॉफ्टवेयर के जरिए सब रजिस्ट्रार के इख्तियारात दिए जाएंगे। आइंदा तमाम प्लॉटों की खरीदो फरोख्त पेलरार सॉफ्टवेयर और ग्रीन सर्टिफिकेट के जरिए मुमकिन होगी। इस अमल से फ्रॉड और गैर कानूनी लेन देन की रोकथाम में मदद मिलेगी। DG पेलरा कैप्टन रिटायर्ड इकरामुल हक ने ब्रीफिंग दी कि यूनिफॉर्म सिस्टम के जरिए तमाम अजला में मंजूरी और निगरानी का अमल यकसा बनाया जाएगा। हाउसिंग स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम के तहत पेपरलेस माहौल तश्कील दिया जा रहा है। DG LDA ताहिर फरूक का कहना था कि हाउसिंग स्कीम्स की रजिस्ट्रेशन और मंजूरी के अमल को आसान और मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाया जा रहा है। सेशन के दौरान चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग फैसल कुरैशी ने भी मुजावजा इस्लाहात और रूल्स में तरमीम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़िला इंतज़ामिया का अजीज भट्टी टाउन और निश्तर जोन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। जल्लो मोड़, पंगाली, गाजियाबाद और बेदिया रोड पर 11 इमारतें कानूनी नोटिस के बगैर मिस्मार कर दी गईं। कानून की बालादस्ती कायम रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर की निगरानी में ज़िला इंतज़ामिया ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई की। ऑपरेशन अजीज भट्टी टाउन और निश्तर जोन में किया गया, जिसमें जल्लो मोड़, पंगाली कैंप, गाजियाबाद और बेदिया रोड पर 11 गैर कानूनी इमारतों को मिस्मार किया गया। इंतज़ामिया के मुताबिक तमाम इमारतों को पेशगी कानूनी नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस पर कोई जवाब मौसूल न होने पर कानून के तकाजे पूरे करते हुए ऑपरेशन अमल में लाया गया। लाहौर समेत सूबा भर में 5 माह से 1.5 करोड़ घरों पर कूड़ा टैक्स नाफिज है। 12 करोड़ आबादी के मकीनों का ग्रेस पीरियड खत्म कर दिया गया। लाहौर में 15 लाख यूनिट से सैनिटेशन फीस आहदाफ हासिल न हो सके। 15 लाख यूनिट से सैनिटेशन फीस अहदाफ हासिल नहीं हो सके। ज़राए के मुताबिक लाहौर में 12 करोड़ जबकि सूबा भर में 32 करोड़ पे बिल वसूली की गई। 15 लाख घरों को सैनिटेशन टैक्स का बिल बेचने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। शहर के 5 था 40 300 रुपए से
5,000 रुपए तक का बिल तैयार। देहात में इस रकबे की इमारत का बिल 200 से 400 रुपए रखा गया है। शहर में 5 मरले घर की 300 और देहात में 200 रुपए कूड़ा फीस होगी। शहर में 6 से 10 मरला मकान को 500 और देहात में 200 रुपए कूड़ा टैक्स बिल तैयार। शहर में 10 से 20 मरला घर को 1,000 और देहात में 400 रुपए का बिल तैयार किया गया है। 2 केनाल तक घर को 2,000 जबकि 40 मरले से ज्यादा घर को 5,000 रुपए कूड़ा टैक्स का बिल तैयार किया गया है। हुकाम के मुताबिक लाहौर डिवीजन में 12 करोड़ रुपए सफाई फीस की मद में इकट्ठे किए जा चुके हैं। मरहलावार नई यूनियन काउंसिल्स को बिलिंग नेटवर्क में शामिल किया जा रहा है। नादहिंदगान को 3 महीने का ग्रेस पीरियड दिया गया है। शहरी बैंक और ऑनलाइन कैश एप्लीकेशन से बिल अदा करेंगे। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब शकील अहमद मियां का कहना है कि सैनिटेशन बिल पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद लागू किया गया। 4 माह के बाद लिटरिंग पर चलान और सैनिटेशन बिल बेचा जाएगा। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा है कि मिसाली गांव प्रोग्राम को तोसी दे रहे हैं। पंजाब के मज़ीद 7,500 देहात को मिसाली बनाने पर काम शुरू हो गया। मरियम नवाज़ का सोहना पंजाब विजन सूबे की तकदीर को बदल रहा है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ, जिसमें मिसाली गाँव और पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में पेशरफ का जायज़ा लिया गया। पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी के CEO खुरम परवेज़ ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि पहले मरहले में 10 डिवीजन्स के देहात में सहूलियात फराम की जा रही हैं। देहात में लाहौर की तर्ज पर रंगदार ट्रफ टाइल्स इस्तेमाल की जाएँ। 51 शहरों में महकमा बल्दियात PDP स्कीमों की निगरानी कर रहा है। ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स की तकमील तरजीही बुनियादों पर हो रही है। सड़कों, गलियों की तामीर और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब भी होगी। तारीखी लाहौर रेलवे स्टेशन की बहाली का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। वज़ीर आला की मंजूरी के बावजूद 6 माह में मंसूबे के लिए 1 अरब रुपए ही जारी हो सके। फंड्स न मिलने से आउटफॉल रोड, बादामी बाग, शाद बाग और मिस्री शाह में काम शुरू ही न हो सका। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। तारीखी लाहौर रेलवे स्टेशन और मुल्हिका इलाकों की बहाली के लिए शुरू होने वाला मेगा प्रोजेक्ट माली मुश्किलात का शिकार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी से मंसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए जारी होने थे। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान मंसूबे के लिए सिर्फ 1 अरब रुपए ही जारी किए गए। 50% तामीराती काम मुकम्मल, बकाया 3.5 अरब रुपए न मिलने के बायस तामीराती काम की रफ्तार मुतासिर। ये मंसूबा रेलवे स्टेशन, दाता दरबार, भाटी गेट और अंदरून लाहौर की बहाली के बड़े पैकेज का हिस्सा है। पंजाब हुकूमत ने पैकेज की मजमूई लागत 9 अरब रुपए मुकर्रर की थी। 3 किलोमीटर के इलाके की अपग्रेडेशन के लिए पंजाब हुकूमत और LDA ने अखराजात उठाने थे। आउटफॉल रोड, बादामी बाग, शाद बाग और मिस्री शाह में अभी तक फील्ड वर्क भी शुरू नहीं हुआ। ज़राए का कहना है कि टेंडर्स जारी होने के बाद भी मंसूबों पर अमली पेशरफ्त न होने से टीपा और LDA की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे हैं। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। महकमा स्पोर्ट्स में जदीद कंट्रोल रूम कायम करने की मंजूरी दी गई। इजलास में तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में स्विमिंग पूल्स के क़याम का फैसला किया गया, जबकि स्विमिंग की रजिस्ट्रेशन फ़ीसों को आधा करने की मंजूरी भी दी गई। सूबा भर के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस की कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग का फैसला किया गया। बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात, नाकिस कारकर्दगी पर तनज़्ज़ुली की जाएगी। महकमा स्पोर्ट्स मुलाजमीन के लिए हाउसिंग कॉलोनी बनाने की मंजूरी दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज पंजाब के क़याम की मंजूरी भी दी गई। तमाम डिवीजन, अजला और हेडक्वार्टर्स के इनकम ऑडिट करवाने का फैसला। हुकूमत पंजाब ने मुतादिद अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। अब्दुल्लाह नैयर शेख को स्पेशल सेक्रेटरी वज़ीर आला ऑफिस तैनात कर दिया गया। फातिमा अरशद की ग्रेड 18 में तरक्की, पंजाब हुकूमत से रिलीव कर दिया गया। फातिमा अरशद को खैबर पख्तूनख्वा में नई तैनाती के लिए रिपोर्ट करने की हिदायत। मियां सरमद हुसैन डिप्टी सेक्रेटरी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड गेटवे ऑफ पंजाब विंग तैनात। गुलाम मुस्तफ़ा को होम डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। इसी तरह नोमान फारूक एनर्जी डिपार्टमेंट से बतौर एडिशनल कमिश्नर गुजरावाला तैनात। मोहम्मद सिफ्तुल्लाह को राजनपुर से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ डिपार्टमेंट भेज दिया गया। हाफिज इमरान नासिर विमेन डेवलपमेंट से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजनपुर तैनात। आबिद शब्बीर को होम डिपार्टमेंट के बजाय विमेन डेवलपमेंट में तैनात कर दिया गया। महकमा SNGAD ने तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।